Hello students, welcome back. In previous video, you studied about discrete frequency distribution. In this video, we are going to discuss the continuous frequency distribution. So let's start. Continuous frequency distribution में क्या होता है? A continuous frequency distribution is carried out when the variable of raw data is continuous or range of the data is large. Range of the data is very large. Then at that time we use continuous frequency distribution to present the data. First of all, the number of classes K or class length C is decided for the raw data. Generally, depending on the raw data, any number from 6 to 15 is decided for the numbers of classes. Generally 6 class to 15 class के बीच में जो है number of classes decide होता है as per your information, as per your data. It should be noted here that there is accepted as a universal trend which may not be true for the every study. Every study के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि 6 से 15 के बीच में ही classes decide हो. Under special circumstances, the number of classes may be less than 6 or more than 15 also. After deciding number of classes, the class length C is determined for each class. For this purpose, range R of the raw data is divided by the number of classes K. Practically, the value of number of classes K and the value of classes length are decided in such a way that there are positive integers and their product value is at least value of range. In notation, C into K is greater than or equal to R. ऐसे डिसाइड होती है क्लास लेंथ और नंबर ऑफ क्लासेस, जिस तरह से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन R से बड़ा हो या तो फिर उससे उसी जितना हो. If the class length for different classes are equal, then it is called continuous frequency distribution in with equal class length. Class length जो है वो every class की सेम होती है तो उसको बोलते हैं continuous frequency distribution. Whenever the range of raw data is too large, then depending on the given information, the class length of different classes may be different. It is called frequency distribution with unequal class length. After deciding the class length, class limits are decided for each class. On the basis of class limits, continuous frequency distribution can be categorized into two ways: exclusive frequency distribution and inclusive frequency distribution. If the upper limit of any class and the lower limit of its succeeding class are same, then it is called exclusive class limits. In exclusive class, the observation having value equal to the lower limit is included in that class, but ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस टाइप के सम करेंगे तब. फिर if upper limit of any class and lower limit of its succeeding class are not same, it is called inclusive class. Upper limit और next जो है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम है तो वो एक्सक्लूसिव और अलग अलग है तो वो इंक्लूसिव. इस तरह से हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट करते हैं. उसके स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइडेड. कोई भी इंफॉर्मेशन है हमें नंबर्स में दी गई है. जैसे हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या करते थे, टेलीमार्क्स करके फिर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते थे. इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि नंबर 50 अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, उसको पहले सबसे पहले डिसाइड करना है कि कितने क्लास में इसको हमें डिवाइड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइडेड व्हिच इज डिनोटेड बाय K. नंबर ऑफ क्लासेस मींस K. उसके बाद क्लास लेंथ शुड बी डिसाइडेड व्हिच इज डिनोटेड बाय C. उसके बाद क्लास लेंथ, अगर नंबर ऑफ क्लासेस हमने डिसाइड कर लिया, सपोज कि 8 क्लास में हम डिवाइड करने वाले हैं, उसके बाद हमें क्लास लेंथ यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा. सपोज कि हम 10 से लेके 28 तक, 10 से 18, फिर अगर हम 10 क्लास लेंथ ले लेते हैं तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. क्लास लेंथ मीन्स
स्टार्ट करने से एंड करने तक कितने वैल्यूज का डिफरेंस होना चाहिए? तो 10, इसको बोलते हैं ग्लास लेंथ। यहाँ पे 10 20 10 20 30 10 कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 10 नंबर्स का, तो इसको बोलते हैं ग्लास लेंथ विच इज डिनोटेड बाय सी। देयर आफ्टर क्लास लिमिट डिसाइडेड। अब क्लास लिमिट डिसाइड करनी है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। सपोज कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 10 20 20 30 30 40, तो इसको बोलते हैं क्लास। इधर नंबर ऑफ क्लास हो गई थी, क्लास लिमिट यानी कि दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 10 एंड सॉरी क्लास लेंथ इज 10, दोनों के बीच का डिफरेंस। और लिमिट कैसे फाइंड करनी है? ये है ये इंडिविजुअल क्लास की लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। इसको जो छोटी अमाउंट होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है वो होती है लोअर लिमिट, और जो राइट हैंड साइड पे होती है वो होती है अपर लिमिट। क्लियर? सेम अलग अलग क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट अगर सेम है तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सेम नहीं है तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। यहाँ पे सेम है, इसकी अपर लिमिट 20 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 20 है। इट मींस दैट दिस इज द एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पे दो तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो सी है क्लास लिमिट कैसे फाइंड होती है? रेंज को डिवाइड करना है नंबर ऑफ क्लास के साथ। C इज इक्वल्स टू R बाय K। R मीन्स रेंज। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है? रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अभी मैंने बोला आपको 50 नंबर्स दिए गए हैं, अलग अलग 50 नंबर्स दिए गए हैं, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू सपोज कि 100 है और सबसे छोटी वैल्यू है 10, तो 100 में से 10 को माइनस करना है तो 90 हो गई हमारी रेंज। इसको बोलते हैं आर। क्लास लेंथ को डिसाइड करने के लिए आर को के से डिवाइड करना पड़ता है। के मींस नंबर ऑफ क्लास। यहाँ पे हमारी रेंज आई 90 और नंबर ऑफ क्लास हमने डिसाइड किया था कि 8 क्लास में हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 8, जो भी आए उस हिसाब से हम इंटीजर में क्लास में डिसाइड करेंगे। नॉट इंटीजर नहीं कर सकते, इंटीजर में ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, और वी कैन से दैट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, राइट? तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। रो डेटा on age of 50 employees of a school are given here, and age of employee is a continuous variable. We have to prepare its frequency distribution. 50 employees की एज दी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन में हम देखें, ये है आपके पेज नंबर 19 के ऊपर एक एग्जांपल दिया गया है, आप उसको देखिए। यहाँ पे सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो है 57 और यहाँ पे सबसे छोटी जो एज है वो है 27। रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट अमाउंट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी रेंज हो जाएगी 57 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 30। यहाँ पे रेंज होगी हमारी 30। अब सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? क्लास। ये जो 50 एम्प्लॉयज की एज हमें दी गई है उसको हम कितने क्लास में डिवाइड करके फिर उसको प्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे 7 क्लास में हम उसको डिवाइड करेंगे। सो A इज इक्वल्स टू 7। अब क्लास लेंथ कितनी रखनी है? दोनों के क्लास में जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है उसकी लेंथ कितनी रखनी है? तो C इज इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने बोला था, R डिवाइडेड बाय K। R इज 30 and K is 7, so we get 4.29। अब इंटीजर में हम नहीं रख सकते तो हम क्या कर लेते हैं? जनरली 5 लास्ट में हम ले लेते हैं 5, उससे नियरर है। अब 4 रखेंगे तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये 5 10 ऐसे जो वैल्यूज है उसको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाती है? आसानी हो जाती है। इसलिए C इज इक्वल्स टू 5। नाउ
क्लास लिमिट, अब क्लास लिमिट मिनिमम वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्लास जो हमारा बनता है उसमें आ जाने चाहिए, उस तरह से हमें क्लास लिमिट रखनी है। अब हमारी मिनिमम वैल्यू है 27, राइट। मिनिमम वैल्यू फर्स्ट जो क्लास हमारा बनता है यहाँ पे 10, 20, 20, 30 ऐसा हमने बनाया था, इसको बोलते हैं क्लास। 10, 20 ये एक क्लास हो गया, ये दूसरा क्लास, ये तीसरा क्लास, इस तरह से क्लास हो जाते हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो फर्स्ट क्लास जो हमारा बनता है उसमें आ जानी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू है हमारी 27, फर्स्ट क्लास ऐसे बनाना है, हमारी क्लास लेंथ है 5, तो 25 से लेके 30 तक हम अगर फर्स्ट क्लास हमारा बनाए 25 से 30, तो जो 27 है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्लास को बनाना है। अब क्लास लिमिट हमें एक्सक्लूसिव बनाना है कि इंक्लूसिव बनाना है, उस हिसाब से एक्सक्लूसिव में क्या होगा, अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी, सेम। तो अगर इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे 25 से 29, फिर 30 से 34, 35 से 39, यहाँ क्लास लेंथ तो 5 ही होगी, लेकिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो अलग अलग होगी। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि कोई भी रो डेटा के ऊपर से कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, उसके स्टेप्स हैं 3 स्टेप। सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्लास डिसाइड करो, फिर क्लास लेंथ डिसाइड करो और बाद में क्लास लिमिट को डिसाइड करो, फिर उस हिसाब से जो है इंफॉर्मेशन को हमें प्रेजेंट करना है। इसका एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी, तब तक इसको रीड कीजिए, समझने की ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।